Now see guys, I can use any equation of line to find out the intercepts and find out the slope very easily. For example, let us say we have any line 3x minus 6y equals to, let us say, 15. See, if I want to get the slope from this equation of line, I can also do the reverse process. What was the equation of line? Y equals to mx plus c, correct? Yes, sir. So I want this equation to look like this. So that means I want y alone. So I'll take the y this side. This becomes 6y equals to 3x minus 15. I'll divide the 6 so that my y is alone. So I get 1 by 2x minus 15 by 6 is 5 by 2. Correct? Have I made this equation look like this? Keeping the y separate? Yes, sir. Now what happens? My m becomes half and my c becomes minus 5 by 2. Be careful about the sign. So I have my y-intercept, I have my slope. Isn't it? Yep. Yes, sir. Oh, so it is that simple, alright? Let's try to convert it into intercept form. Now we know that intercept form is x by a plus y by b equals to 1. The simple stuff, divide 15 so that I'll be able to make 1 over here. So here I made y alone and here my thing is that I'll make this 1. So how to make that 1? Divide by 15. I'll have x by 5 minus. And now you have 15 से divide होगा तो कितना हो जाएगा? 2y by 5 equals to 1. Correct? Right? I've divided the entire equation by 15. Okay? Now I have this as x by 5. I want a plus, so I wrote a plus. And then I'm writing y upon. This minus goes over here, minus 5. What about this 2? This goes below this. This becomes upon 2. Correct? Comfortable from here to here? Huh? Yes. So what are the x-intercept and y-intercept? The x-intercept is 5. Y-intercept is minus 5 by 2. You can check it out. Matches? Exactly the same. Yes, sir. And yes, if he asks me about area I already know it is half AB. Right? I'll not even calculate what is x-intercept, y-intercept. I'll just say from here. Once reached to the intercept form, the area is half into x-intercept into y-intercept. And forget about the minus sign because area is always positive. So half into 5 into 5 by 2, that's it. So 25 by 4 is my area. 6.25. Clear? Take your time, grasp it. This is the most important part. That from the equation of line, you are able to write the slope. हाँ जी सर. Yes, sir. अच्छा, आपको इसका फिगर भी बनाना आना चाहिए. एक रफ अप्रॉक्सीमेट, नॉट द एग्जैक्ट, बट रफ अप्रॉक्सीमेट फिगर. देखो फिगर कैसे बनाते हैं. इंटरसेप्ट्स हैं आपके पास. You will get the 2 points straight away. इंटरसेप्ट्स क्या है? 5 और minus 5 by 2. तो x इंटरसेप्ट है 5 प्लस का 5 यानी कि यहाँ पे कहीं होगा 5 पे. y इंटरसेप्ट क्या है? माइनस का 5 by 2. तो कहीं नीचे होगा यहाँ पर, राइट? माइनस का 5 by 2. बस 2 पॉइंट है तो लाइन तो बनी गई. तो रफ लाइन का भी आइडिया आपके पास, isn't it? क्लियर? इस एरिया की बात चल रही थी जो आपने निकाला है.
So I use intercept form here to draw the rough line. ठीक है? Yes, sir. अच्छा, Manmeet, right? चलो, Yes, sir. अब मैं इंटरसेप्ट फॉर्म को यूज नहीं कर रहा, मैं यूज कर रहा हूँ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म को लाइन बनाने के लिए. तो फिर मतलब मेरे पास ये वाला पॉइंट नहीं है ना, बिकॉज आई एम यूजिंग दिस डेटा टू ड्रॉ द लाइन. डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चन कैसा भी हो सकता है, तो मैंने कहा इसको हटा देते हैं ना, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस. ठीक है, ये सब मैं आपके क्वेश्चंस के लिए बता रहा हूँ गाइस. तो आपके टॉपिक जो है, कंसेप्ट जो है ऑलमोस्ट खत्म हो गया, अब सिर्फ क्वेश्चंस बनेंगे. तो वाई इंटरसेप्ट है ना, अब आपको मुझे सिर्फ वाई इंटरसेप्ट पता है और आप मेरे को दे रहे हो स्लोप. अब मेरे को बताओ गाइस, स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? Sir, positive. Acute पॉजिटिव, angle है. यानी एंगल क्या बनाएगा? एक्यूट. मतलब किस तरफ लीन होगा? फॉरवर्ड को लीन Towards होगा. right. फॉरवर्ड को लीन होगा. तो यहाँ से मैंने एक फॉरवर्ड लीन लाइन बना दी. अब कोई, आप रफ फिगर ही बनाते हो, ठीक है, आपका कोई सर आपको कैसे पता, कोई अगर ऐसे बनाते तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने एक रफ फिगर ही लाइक बना दी, आप ये बना दो, आई डोंट केयर. बात करो भाई, एक रफ आइडिया होना चाहिए. एटलीस्ट यू शुड नो कि कौन कौन से क्वाड्रेंट से पास कर रही है. तो ये लाइन कौन कौन से क्वाड्रेंट से पास कर रही है? फर्स्ट, First, fourth, फोर्थ और थर्ड. and third. तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि दिस लाइन डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द क्वाड्रेंट, और ऑप्शन दे देगा आपको, तो आप क्या लिख दोगे कि सेकंड क्वाड्रेंट से पास नहीं करती. राइट राहुल? शिशिर? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, shall I remove it? Yes. Yes, sir. Yep. ठीक है, देखो कुछ स्पेशल बात करते हैं, ये की पॉइंट्स हैं, है ना. ऐसे कोई पढ़ाए नहीं जाते कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, किसी किताब में आपको नहीं मिलेंगे. ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस डेटा सफिशिएंसी में बनाए जाते हैं. राइट, जैसे अगर आप क्वाड्रिलेटरल पढ़ोगे तो आपको किसी बुक में भी जब आप रिवाइज करोगे तो वो सब नहीं मिलेगा कि रिवर्स कहाँ ट्रू है, वो सब हमने क्वेश्चंस के हिसाब से स्पेसिफिकली जीमैट रिलेटेड होकर पढ़ा है. अब देखो, अगर हमारे पास एक लाइन है जिसका एम पॉजिटिव हुआ, अगर एम पॉजिटिव हुआ तो क्या होगा? Sir, या तो first quadrant में, fourth में. लाइन जो है इंक्लाइंड होगी टुवर्ड्स राइट, Uh, करेक्ट. फॉरवर्ड को झुकी होगी. तो कोई भी फॉरवर्ड को झुकी हुई लाइन अगर मैं बनाऊं तो ऐसी हो सकती है, ऐसी हो सकती है, आगे बढ़ती जाएगी लाइन, ऐसी हो सकती है, ऐसी हो सकती है, ऐसी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है. राइट. अब आप देखो, ये जो लाइन है इसके नेसेसरी क्वाड्रेंट्स कौन से हैं? कौन से क्वाड्रेंट से हर एक लाइन पास कर रही है? रट नहीं सकते, समझना ही पड़ेगा, विजुअलाइज ही करना पड़ेगा, नहीं तो भूल जाओगे. कौन सा क्वाड्रेंट नेसेसरी है? first and third. First and थर्ड. third. हाँ. फर्स्ट और थर्ड में सारी लाइनें आ रही हैं, ठीक है, जबकि सेकंड एंड फोर्थ की कोई कंफर्मेशन नहीं है. इसमें कौन मिसिंग है? इसमें सेकंड मिसिंग है. इन वालों के पास कौन मिसिंग है? इनके पास फोर्थ मिसिंग है. इस बेचारी के पास कौन नहीं है? इसके पास सेकंड भी नहीं है और फोर्थ भी नहीं है. ठीक है, तो पॉजिटिव स्लोप्स का नेसेसरी क्वाड्रेंट है फर्स्ट और थर्ड. ये बात सबको समझ में आती है तो बताओ. हाँ जी सर. हाँ जी. Yes, Yes, sir. तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एम पॉजिटिव. बहुत बढ़िया बात आने वाली है, यहाँ से ऐसे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बनेंगे ना, डेटा सफिशिएंसी का आपका सारा पढ़ा हुआ बेकार हो जाएगा, क्योंकि ये सब चीजें विजुअलाइज नहीं करी और वो रट के आ गए हैं इक्वेशन ऑफ लाइन वगैरह, उससे कुछ बनना ही नहीं है डेटा सफिशिएंसी में. अब अगर मैं आपको बोल दूं कि y इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 बोल देते हैं, और बोल देता हूँ y इंटरसेप्ट इक्वल्स टू 0 है, और बोल देते हैं y इंटरसेप्ट लेस देन 0 है. समझ गए? दो स्टेटमेंट बना दी मैंने डेटा सफिशिएंसी की, बना दी ना. राइट. अब बताओ कि y इंटरसेप्ट पॉजिटिव हो गया तो कौन से क्वाड्रेंट से एक्स्ट्रा पास करेगी? Second. y इंटरसेप्ट पॉजिटिव वाली, यानी कि ये लाइन होगी इस टाइप की, ये कहाँ से पास कर रही है? ये सेकंड के थ्रू भी जाएगी, तो अब ये सेकंड भी आ जाएगा पिक्चर में.
इक्वल टू 0 हो गया तो कौन सी लाइन हो गई? ये वाली लाइन हो गई, राइट। ये किसी से और पास नहीं करेगी। लेस देन 0 हो गया तो ये y एक्सिस पे नेगेटिव पॉइंट वाला, ये वाली लाइन हो गई। ये किससे पास कर रही है? एक्स्ट्रा फोर्थ से पास। समझ गए? राइट। नाउ ऑफ कोर्स यू कैन नॉट cram it up, you have to understand it and draw the scenarios there. ये सब याद नहीं करके जाओगे। m equals to negative, नेसेसरी कोऑर्डिनेट्स बताओ आप लोग करोगे। Second and fourth. राइट। अब लाइंस कैसे होंगी? लीन टूवर्ड्स बैकवर्ड्स, ऐसी जा सकती है, ऐसी जा सकती है, ऐसी जा सकती है, या हो सकता है वापस इससे पास करने वाली हो। तो नेसेसरी कोऑर्डिनेट्स कौन से होगा इसमें? तो नेगेटिव मतलब इवन क्वाड्रेंट्स, पॉजिटिव मतलब ऑड क्वाड्रेंट्स। सेकंड, फोर्थ, फिर बात आई वाई इंटरसेप्ट पे। ग्रेटर देन 0, इक्वल्स टू 0, लेस देन 0। इक्वल्स टू 0 हो गया तो टेंशन ही नहीं है, कहीं से पास ही नहीं करेगी, ओरिजिन से ही निकल जाएगी। ग्रेटर देन 0 मतलब ये पॉइंट, ये वाला लाइन कहाँ से एक्स्ट्रा पास कर रहा है? फर्स्ट से। लेस देन 0 मतलब ये वाला पॉइंट कहाँ से पास कर गया? थर्ड से। ठीक, क्लियर? क्लियर, लिखो। Yes. डन, ग्रेट। चलो देखें क्वेश्चन कैसे बनेगा इसमें। क्वेश्चन डेटा सफिशिएंसी फेवरेट है ना, वहीं पे सब कॉम्प्लिकेशंस अगर करते हैं। क्वेश्चन कहेगा इज द लाइन passing through second quadrant? First statement, slope of line is greater than 0. Second statement, y-intercept is less than 0. क्या हो जाएगा? C. C, right? You can answer the question and the answer is no, it does not. But you can answer it, right? आप मुझे बता तो सकते हो ना। yes मतलब C और no मतलब E, ऐसा कुछ नहीं है। सवाल ये है कि आप बता सकते हो कि नहीं। आप बता सकते हो कि सर नहीं पास करेगी, राइट। किससे पास करेगी? पॉजिटिव स्लोप, नेसेसरी क्वाड्रेंट, फर्स्ट टाइम थर्ड। पास कर ही रही है। सेकंड y लेस देन 0, दैट मींस फोर्थ से, तो इतने से पास करेगी, नॉट द सेकंड। क्लियर है? आयशा, दिशा, ध्रुव, यस सर। चलो तो ये बात हो गई खत्म। अब आप एक बार लिख लो स्पेशल लाइंस। स्पेशल लाइंस, so I'll be talking about the individual special lines जिनके बारे में आपको तुरंत पता होना चाहिए, within seconds you should answer me, and the pair of special lines as well, which means perpendicular and parallel. So guys, if I say that a line is parallel to x-axis, तो इसका इक्वेशन क्या होगा? मान लेते हैं किसी कांस्टेंट से पास कर रही है, तो the line
is parallel to x-axis, or you can also say perpendicular to y-axis. तो guys, इसका सिंपल इक्वेशन है and that is y is equals to k, क्योंकि y नहीं बदल रहा है, y कांस्टेंट रह रहा है, x फ्री है इसमें। या तो ऐसे सोच सकते हो या फिर आप ऐसे सोच सकते हो कि इसका स्लोप है 0, क्योंकि ये पैरेलल है। अगर एक लाइन आपने इसके ऊपर ही पैरेलल बना दी, राइट, तो व्हाट विल बी द एंगल गाइस मेड बाय द पॉजिटिव एक्स एक्सिस? कैसे 0 हुआ ना, 90 तो ये हुआ। हम तो इसकी बात कर रहे हैं ना, पैरेलल की। ओके सर। 0 हुआ ना, तो y इक्वल्स टू आप क्या बोलोगे, mx प्लस सी, और tan थीटा हो गया tan 0 इंटू एक्स प्लस सी, सी इज के, तो ये 0 हो गया, तो y इक्वल्स टू के आ गया। सो रिमेंबर इट that y equals to constant, that's it. Of course, y equals to constant satisfy each and every point on this line, isn't it? Yes, sir. That's it. Simple. याद रखेंगे. Parallel to x-axis, it's y equals to k. The y part is constant. X is free to move. Similarly, now if you can understand it, अगर ये line parallel to y-axis हो गई, किसी दूसरे constant c से पास करते हो, इसका equation क्या होगा? कौन constant है यहाँ पे? x coordinate की y coordinate? X is equal to K. x equals to c, right? क्योंकि कुछ भी पॉइंट ले लो, x जो है वो c रहेगा. Now y is free to move, and if they intersect, this point is going to be c comma k, isn't it? So this is for line parallel to Y-axis. and perpendicular to x-axis. Clear है? ये दोनों लाइनें आपको पता होनी चाहिए, तुरंत लिखना है आपको. Just within a second it should come to your mind. ठीक है? So if I say equation of line parallel to x-axis and passing through five comma 0, parallel to x-axis line कौन सी होगी? Y is equal to 5. y equals to k या x equals to k? पहले तो ये बताओ. Y equals to K. y equals to k. तो y कोऑर्डिनेट क्या है इस पॉइंट का? 0. 0. तो लाइन की इक्वेशन क्या होगी? Y y. is equal to 0. समझ गए बात? अमित, मतलब y कांस्टेंट रहने वाला है, तो जो पॉइंट दिया उसका 0 उठा लो, उसका y कोऑर्डिनेट उठा लो. क्लियर? यस सर। Yes, sir. तो सिमिलरली अगर मैं इसको x एक्सिस को हटा के y एक्सिस कर दूं तो मेरी लाइन क्या हो जाएगी? X is equal to C. X equals to k. अब x इक्वल्स टू क्या लिख देंगे की जगह? y, राइट? फिर x कोऑर्डिनेट आएगा. इजी. So these are two spatial lines. Now we'll jump to third spatial line. Understand the language. Gmat loves to play with the English. Right? So there are two lines first of all. One is this, which is bisecting the coordinate axis. That means 45 degree, 45 degree. What becomes the theta? Y is equal to X. Right? The theta becomes 45 degree. Right? So m becomes 1. So y is equals to mx and x plus constant. Constant is 0. Y-intercept. So you get the line as y equals to x. Because m is 1 and c equals to 0. Put it in y equals to mx plus c. You'll get the answer. Have a look at this. This also 135 degrees. bisects the coordinate axis. But this is 135 degrees. So if you have
this angle from the negative x-axis as 45, then m becomes nothing but -1, -1. right? तो अगर आपका एंगल 90 से बढ़ जा रहा है तो आप नेगेटिव से नाप लो, नेगेटिव से अगर नापोगे तो माइनस लगा देना स्लोप में, ठीक है? अगर आपको मान लेते लाइन कल को ऐसा आ गया, आपने कहा सर ये 120 डिग्री तो पता नहीं था हमें, तो मैं कहूँगा कुछ नहीं, आप 60 नाप लो इधर से, और 1060√3 होता है तो आप -√3 लगा देना। क्लियर? इजी? तो जिधर से एक्यूट आ रहा है आप उधर से नाप लो। बस आप ये समझ जाना कि अगर आपने लेफ्ट साइड से नापा है तो आप स्लोप में नेगेटिव लगाओगे, तो एम आ गया -1, सी फिर से 0 ही है, तो इक्वेशन क्या आ गई गाइस? Y is equal to -x. y इक्वल्स टू -x, ठीक है। अब एक बात याद रखना, ये दोनों लाइन पिक्चर में आ जाएंगे अगर वो कुछ ऐसा बोलता है, दैट लाइन bisects the coordinate axis, तो डेटा सफिशिएंट नहीं है अभी तक, ठीक है? मुझे नहीं पता कौन सी लाइन की बात कर रहे हो। अगर आपने बोला लाइन इज इक्वली inclined with both the axes, अभी भी मुझे नहीं पता आंसर क्या है, दोनों की बात कर रहे हो आप। It can be y equals to x or y equals to -x. The data is insufficient to tell anything about line. Clear, Manmeet? You cannot answer the question. Line bisects angle between coordinate axes. So what? I don't know. Y equals to x or -x. Line is equally inclined with both the axes. I don't know. X or -x. No idea. Clear? Yes, sir. Perfect. If I add the statement that the line passes through first quadrant, now the data becomes sufficient suddenly. Because if it passed through first quadrant, this line cannot be the answer anymore. This is from second and fourth. मनमीत समझ में आया कैसे बनेगा डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन? Yes, sir. कोई फॉर्मूला, कोई स्लोप फॉर्म, कोई आपका सेक्शन फॉर्मूला कुछ नहीं काम आएगा, विजुअलाइजेशन काम आएगी अच्छे क्वेश्चंस में जाके, ठीक? शिशिर, दिशा, Yes, sir. चलो एक क्वेश्चन ट्राई करो। If the intercepts of the line are equal, what is the slope of line? इंटरसेप्ट हैं जैसे x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 5, तो जैसे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 के हिसाब से अगर हम चलें तो एक तरफ x2 की मतलब फिर दोनों डिवाइड होके 1 आएगा आंसर m का, देन इट इज इक्वल टू बी 45 डिग्री, tan 45 डिग्री। गलत सोच रहे हो, इंटरसेप्ट साइन के रिस्पेक्ट में होता है, तो अगर आप बोल रहे हो कि दोनों का इंटरसेप्ट इक्वल है तो दोनों का पॉजिटिव होगा या दोनों का नेगेटिव, तो +-1 जो दोनों आंसर बोल रहे हो गलत हो चुका है, या तो दोनों पॉजिटिव है तभी तो इक्वल होंगे, लेट अस से समथिंग लाइक दिस 3 and 3, या फिर लाइन आपकी बनेगी कुछ ऐसी -3 and -3, क्या स्लोप आ रहा है बताना मुझे, 1 आ रहा है कि -1 आ रहा है? 1 आएगा सर, -1 आ रहा है, क्या बोल रहे हो आप? क्या आ रहा है स्लोप आपका इसमें? -1 आ रहा है, -1 आ रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल है, इंक्लाइन टुवर्ड्स बैकवर्ड, 45 डिग्री तो इधर से है ना, नेगेटिव से, isn't it? -1 आ रहा है, राइट? अगर m को 1 आना था तो वो ऐसे आता,
leaning towards forward. और forward मतलब ऐसा. And now your intercepts are not equal. If this guy is 3, this guy is minus 3. Isn't it, Aisha? Correct? Yes, sir.